Salutation to the pure consciousness and witness conscious. Salutation to the pure consciousness and witness conscious. According Hindi language, ब्रह्म चैतन्य को अभिवादन और साक्षी चेतन को अभिवादन। ब्रह्म चैतन्य साक्षी चेतन। ब्रह्म चैतन्य गॉड ऑफ द गॉड्स, देवता का भी देवता महादेव। प्योर कॉन्शियसनेस पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ और प्योर कॉन्शियसनेस सेम। प्योर कॉन्शियसनेस and the position of Pashupatinath same. And our immortal nature also same. There is one name Brahma Chaitanya. अभिवादन ब्रह्म चैतन्य को और साक्षी चेतन को अभिवादन। लैंग्वेज इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी एंड नेपाली लैंग्वेज। ब्रह्म चैतन्य संस्कृत वर्ड ब्रह्म चैतन्य। ब्रह्मा गॉड, द गॉड अमंग गॉड्स, देवता का भी देवता। यह है ब्रह्म चैतन्य। ब्रह्म चैतन्य और साक्षी चेतन, यही सब कुछ है। वेद का सार वेदांत। वेदांत दर्शन संसार में सबसे ऊंचा है, अतुलनीय है। वेदांत दर्शन को किसी भी दर्शन से तुलना किया नहीं जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम है। सुप्रीम फिलोसॉफी ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज कॉल्ड वेदांत फिलोसॉफी और उपनिषद फिलोसॉफी। अकॉर्डिंग वेदांत फिलोसॉफी, आवर पोजिशन कैन बी अकॉर्डिंग सल्वेशन। हम लोगों का जो स्वरूप मुक्ति की तरह, मोक्ष की तरह रह सकता है केवल उपनिषद का दर्शन से, केवल वेदांत का दर्शन से। अब भी ही, वर्तमान में ही, हरदम के लिए ही यही संसार में सबसे अच्छा दर्शन है, वेदांत दर्शन, जो संसार का हर कोई को भी जीवन मुक्त, देह मुक्त वर्तमान से ही दे सकता है। इतना क्षमता है, केवल वेदांत दर्शन में ऐसा क्षमता है। वेदांत दर्शन कहना और उपनिषद दर्शन कहना एक ही है।
जो दुर्लभ है, जो संसार में बहुत बहुत ही दुर्लभ है, लेकिन इस कार्यक्रम में सुलभ है, इस कार्यक्रम में सुलभ है, हरदम प्राप्त है इस कार्यक्रम में। So we need always pleasure, breakless pleasure, non-stopping pleasure. We want, we all want, we all of the world want always pleasure, immortal pleasure. And we want to be top of the world. We want to be toppest on the world. And we want always to be. We want always to be as immortal. We need three. We need three. First, always pleasure. Without any troll, always pleasure we want. Always, forever, one. And two, toppest on the world, we want to be. And third, we want to be immortal, not mortal. So, no concern with the physical world, because physical world cannot be immortal, never cannot be immortal. Only pure consciousness can be immortal. Always pleasure only possible from pure consciousness. And pure consciousness is the topmost, toppest position on the world. So our desire, our demands fulfills when our position happens according to pure consciousness, that is according to Brahma Chaitanya, that is according witness conscious, Sakshi Chaitanya. Sakshi Chaitanya, Brahma Chaitanya. Sakshi Chaitanya, Brahma Chaitanya. Whole soul knowledge is witness conscious and pure consciousness. Actually knowledge, forever knowledge, which is immortal, which is full of pleasure always, which is immortal, which we all want. We means the people of the world. We want this. Now, today, according to date 2025, today month, February, date 12, Wednesday, according to Hinduism, Maghe Purnima today. Swasthani Brata, ending day today. Swasthani Brata, completed today. And Budhavara, according to Nepali Bikram Samvat 2081, month Magh last 30, Tiskate Magh, Masanti, Magh Masanti, Budhavara. This presenting
from the president of the Immortal Pleasure Center, according to Nepali, Akhand Sukha Kendra, from Nepal country, from Bhairava city, Karachi city, Palpatanshan city, Butol city, through media FM radio. This daily program, time of only 15 minutes. We can tell, we can listen English language, Sanskrit language, Hindi language, Nepali language. By any way, we should know our actual position, that is immortal. That is according Brahma Chaitanya Sakshi Chetan. साक्षी चेतन ब्रह्म चेतन। अब मैं अभी ब्रह्म चैतन्य जो है वो साक्षी चेतन ब्रह्म चेतन के रूप में हम लोग अमर हो सकते हैं और सत्य के दृष्टिकोण से सच्चाई यही है। इसके अलावा और कुछ भी सच्चाई नहीं है। सदा सच्चाई इसके अलावा कुछ भी नहीं है, न पहले न वर्तमान में न भविष्य में। इसलिए जानना होगा। कैसे जाने ये हम कहेंगे। पहले तो ब्रह्म चैतन्य के बारे में जाने। क्या है ब्रह्म चैतन्य? ब्रह्म चैतन्य है जो सदा निर्विकार है, जो सत्य रूप है, जो प्रकाश रूप है, जो अद्वितीय है, जो अविनाशी है, जो अखंड सुख है, उसी को कहा जाता है ब्रह्म चैतन्य। ब्रह्म चैतन्य में ही संसार का कल्पना हुआ है। केवल ब्रह्म चैतन्य में ही संसार का कल्पना हुआ है, लेकिन जड़ है, अनसूल अनात्मा है। क्योंकि कल्पित जड़ होता है, कल्पित अनात्मा होता है, जड़ होता है। जो चेतन है, जो चैतन्य है, जो ज्ञान है, वो केवल ब्रह्म चैतन्य का ही है। ब्रह्म चैतन्य में ही संसार शरीर खड़ा हुआ है और ब्रह्म चैतन्य ही शरीर संसार को प्रकाश कर रहा है। शरीर संसार को प्रकाश जो कर रहा है वो केवल ब्रह्म चैतन्य है। कैसे? कैसे कि ब्रह्म चैतन्य में तो शरीर संसार खड़ा हुआ है, कल्पना रूप में खड़ा हुआ है। संसार का नाम तो दृढ़ कल्पना ही है, केवल दृढ़ कल्पना ही है। वो कल्पना खड़ा हुआ है ब्रह्म चैतन्य में, जो सदा निर्विकार सत्य रूप प्रकाश रूप अद्वितीय अविनाशी अखंड सुख है। इसी में खड़ा हुआ है संसार और ब्रह्म चैतन्य ही सारी संसार को अखंड प्रकाशित कर रहा है। शरीर संसार को जो जाना जाता है, इसका रहस्य है केवल ब्रह्म चैतन्य से ही, उसके अलावा नहीं। कैसे? ब्रह्म चैतन्य ही जो कल्पना में शरीर संसार खड़ा हुआ है, उसी में प्रवेश करके वो ही सारा को प्रकाशित कर रहा है। ब्रह्म चैतन्य में जो संसार शरीर खड़ा हो रहा है, वही ब्रह्म चैतन्य शरीर संसार के अंदर प्रवेश करके वो ही केवल प्रकाशित कर रहा है। यह है वेदांत का घोषणा, निर्विकल्प घोषणा। कोई दुनिया में इस तर्क को काट नहीं सकता है, इस प्रमाण को काट नहीं सकता है।
इस प्रकार से संसार का अधिष्ठान केवल ब्रह्म चैतन्य है, सारे संसार का आधार केवल ब्रह्म चैतन्य है। और ये है केवल ब्रह्म का मतलब है केवल प्रकाश रूप। प्रकाश रूप एक ब्रह्म वस्तु ही सदा सत्य है। प्रकाश रूप एक ब्रह्म वस्तु ही केवल हरदम शाश्वत सत्य है, निर्विकल्प सत्य है। इसको कोई दुनिया में काट नहीं सकता है। ये दर्शन में सबसे ऊंचा दर्शन है। इस दर्शन को सबसे ऊंचा माना गया है। अतुलनीय, अतुलनीय है। अब यही जो ब्रह्म चैतन्य है, शरीर में प्रवेश करके शरीर का बाहर दुनिया को ज्ञान करता है साक्षी चेतन के रूप से। और दुनिया का जो विषय प्रत्यक्ष होता है साक्षी चेतन से ही, और से नहीं। ये शरीर बाहर का और शरीर भीतर का भी। शरीर में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि जो आता है, उसमें ब्रह्म चैतन्य ही शरीर में प्रवेश करके उस सबको जानता है, प्रकाशित करता है। क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह आता है, जाता है। जानने वाला जो साक्षी चेतन है वही से वो प्रत्यक्ष होता है। जो प्रत्यक्ष होता है वो आता जाता रहता है, नहीं ठहरता है। इस वजह से साक्षी चेतन ब्रह्म चेतन में रह जाता है। ब्रह्म चेतन है ब्रह्म चैतन्य। इस तरह से ब्रह्म चैतन्य ही केवल है। संसार के पहले भी, संसार के समय में भी वही एक प्रकाशित कर रहा है, और संसार के बाद में भी वही एक ठहर रहा है हरदम। वही है आनंद ही आनंद, हमारा आनंद, परमानंद, परिपूर्णता, सदा मोक्ष, सदा मुक्त। यह है पशुपतिनाथ का घोषणा। समय के नाते अभी इतना ही कहता हूँ। हरिओम तत्सत।